In class 12th writing skills, we have different kinds of questions. You might be aware about the same. One is the notice writing. Second is the invitation. And a sub part of invitation is replies. And then you have the report writing, application cum biodata, article writing. These are some of the next one. That is overall. First is your question. First question will be notice. Notice के अंदर you won't be having any choice for other question, but it would be an internal. Means notice और notice के बीच में आपका choice होगा. Then invitations and replies. Then third is आपका letter, in which you will be having the letter to editor and you will be having application cum biodata. Then the next question will be article or a report writing. And all of them are quite different. And definitely, if you are practicing continuously, then you can definitely score what you want to. Or else, आपका चाहे वो नोटिस हो या इन्विटेशंस हो या फिर आपका आर्टिकल राइटिंग है या एप्लीकेशन कम बायोडेटा या रिपोर्ट है, दे आर ऑल इन अ वे हाई इंग्लिश. कहने का मतलब ये है कि ये प्रैक्टिकली हम इनको यूज करते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर प्रैक्टिकली यूज्ड. Notice you can see that is put on many boards. Then invitations and replies, we use it for marriages and other purposes. And then for the article writing, those students who want to pursue something related to journalism, they have the nick over there. And then report writing, the one which you read in the newspaper. और आपको भी पता है कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो न्यूज़पेपर का जो इंग्लिश होता है दैट्स ऑलवेज समथिंग वेरी डिफरेंट. The next is आपका application cum biodata, which I always tell my students that you should always इसको आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो. This is because the next year when you go to the college, आपको वहां पर अपना रिज्यूमे, अपना बायोडेटा बनाना पड़ता है. Whatever course you are taking, you need to make it. And then they feel that प्रॉब्लम की मान कैसे बनाना है. एंड देन आई टेल देम द सेम, जो 12th में हमने बनाया था वही तो है. तो you will be having these kinds of questions in your 12th standard. And right now I'm going to start with notice writing. The very first question, that is notice writing, and the second question, which is invitation come replies, it is put in a box. ये जो है हमेशा, एंड बॉक्स के जो है इट इज, then you have the word limit which is 50 words, and this 50 words is for the notice that you are going to give, not for the one which is जो ऊपर और नीचे दिया उसको नहीं. जो आपका कंटेंट है उसको हम 50 वर्ड्स के अंदर लेकर जाएंगे. सो बॉक्सेस आपका देन आपका 50 वर्ड्स का होता है. देन यू हैव टू राइट, आपके पास जो इंपॉर्टेंट है वो है इशूइंग अथॉरिटी. कौन इस नोटिस को इश्यू कर रहा है वो. इफ द प्लेस इज गिवन, यू नीड टू राइट इट. कभी क्वेश्चन में दिया होता है यू आर द हेड बॉय ऑफ एबीसी स्कूल दिल्ली, तो आपको वो पूरा लिखना होता है. नथिंग विच इज गिवन इन द क्वेश्चन शुड बी लेफ्ट आउट. ये बोर्ड का एक रूल है. Then you have the word what we call as notice, then date, then the title, yani ki for which purpose the notice is being given. ये आपका सारा कुछ जो है ऊपर आता है. एंड नीचे आपका आता है the name of the person who is issuing, his designation, his or her designation if given. अगर दिया होता, most of the time it is given, and in signature.
ये आपका नीचे आता है, दिस इज आपका जो ऊपर आएगा और ये आपके सारे नीचे आएंगे, और बीच में आपका आता है कंटेंट. And only one thing I would again and again tell, which I have seen even in the boards while I've checked it. एक जो प्रॉब्लम हमेशा आती है वो है कि बच्चे जो है दे डोंट मेक द बॉक्स. उनको लगता है बॉक्स बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और अगर हमने बॉक्स नहीं भी बनाया होगा तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे. तो प्लीज डोंट बी इन दिस मिथ. आप लोग इस मिथ में बिल्कुल भी मत रहना. बॉक्स बनाना जरूरी है. ऑन द वेरी फर्स्ट पेज यू कैन मेक अ वेरी बिग. हम लोग, मैं नॉर्मली बच्चों को कहती हूँ स्टार्ट विद द राइटिंग स्किल्स, इसीलिए आई एम टेलिंग दिस थिंग. ये मैं सिर्फ फॉर्मेट के लिए बना रही हूँ. दिस यू ऑल नीड डोंट नीड टू. आप लोग जस्ट यू कैन जस्ट नोट डाउन एज अ फॉर्मेट. नॉट, दिस इज नॉट दिस यू डोंट नीड टू मेक. आपको सिर्फ एक बॉक्स ही बनाना है. Means the school, and in boards you can't expect that it might be a school, it can be RWA. समटाइम्स वी हैव द क्वेश्चंस लाइक आपकी सोसाइटी में जो है मीटिंग है, आपकी सोसाइटी में पानी नहीं आएगा, आपकी सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी बंद रहेगा. So it can be even related to, sometimes it is for the library, from the side of a library. Sometimes it is from the side of, it is मतलब कि एक आपका हो गया स्कूल, एक हो गया आपका लाइब्रेरी, दूसरा आपका हो गया एनी RWA सोसाइटी एंड एनी क्लब. तो यू कैन एक्सपेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ. तो जो भी आपका इश्यूअर है इज मतलब कि उनका जो अथॉरिटी का जो नेम है वो यहाँ आ जाएगा along with the place is given. Then the word what we call as notice, and this you put in the caps. आपको इसे कैपिटल लेटर में डालना है. एंड देन दिस इज हेयर आपका जो है now the next is what is the format of date. Most of the time in a hurry हम लोग लिखते हैं डेट को, हम ऐसे लिखते हैं लाइक टुडे इज 13 जून, तो हम लिखते हैं 13/6/2023. समटाइम्स इट इज 13/6/23, बट दीज बोथ आर इनकरेक्ट. ये दोनों बिल्कुल गलत है. These both are incorrect. The correct form of writing dates is either you write 13th June 2023, and if you are putting month ahead, आप पहले month को लिखोगे तो जून 13 लिखोगे, 13th नहीं लिखोगे. जून 13th जून होता है, जून 13 होता है. There's a rule. इन दोनों में से आप किसी एक को लिख सकते हो. Then the title for which the notice is being issued, जिसके लिए आपका नोटिस इश्यू हो रहा है उसका यहाँ पर टाइटल. देन दिस विल बी योर कंटेंट. अब कंटेंट में क्या लिखना है, व्हाट इज द कंटेंट. कंटेंट से हमारा नोटिस का एक सिंपल कंटेंट होता है whom, what, when, where and any other details. मतलब आप किसको ये नोटिस दे रहे हो, टू whom दिस नोटिस इज एड्रेस्ड. ये नोटिस किसको एड्रेस हो रहा है.
class 10 students, class 12 students, members of society, members of the school cabinet, members of library, मीन्स आप किसको एड्रेस कर रहे हो वो हो गया आपका हूम. देन व्हाट यू वांट टू एड्रेस देम, आप उनको क्या बताना चाहते हो. इफ देर इज एनी इवेंट, अगर कोई इवेंट है तो वो कब होगा, व्हेन, वेयर, मतलब उससे रिलेवेंट टाइमिंग, डेट, कुछ भी आपका डिटेल है. इफ यू वांट टू सीक द मनी तो देन आपका जो है पैसा उनको कितना देना है, एंड वॉट एवर अदर डिटेल्स यू वांट टू मेंशन. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंटेंट. उसके बाद सिग्नेचर एंड द पर्सन हु इज इश्यूइंग, जैसे क्वेश्चन में दिया होता है यू आर द हेड बॉय, तो उसका नाम है, कोई भी नाम दिया है, यू आर अरुण हेड बॉय, तो अरुण, फिर उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन हेड बॉय. दिस इज व्हाट वी कॉल एज द फॉर्मेट ऑफ नोटिस, एंड देन वी नीड टू पुट इट इन अ प्रॉपर बॉक्स. आपको उसका जो बॉक्स है वो पूरा बनाना है, because other, if you are not making the box you will not be provided the marks. This is very 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 important. What kinds of notice you can expect in your books? No need to note down this. This is only कि आपके questions कौन कौन से हो सकते हैं. The very first you can expect is any event in your school, any exhibition, any celebration of any day. जैसे आपके स्कूल के अंदर टीचर्स डे, एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, एनी पर्टिकुलर डे, फाउंडर्स डे. देन कोई इवेंट है, आपके स्पेसिफिकली इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, एग्जीबिशन है, साइंस एग्जीबिशन है वो आपका. देन देयर माइट बी सम मीटिंग, जैसे कि इन्वेस्टर सेरेमनी करना है, उसके लिए बच्चों को बुलाया है, स्कूल के अंदर डिसिप्लिन इंश्योर करना है, क्लीनलीनेस इंश्योर करना. दिस केम इन द एग्जाम ऑल्सो, मतलब ये स्वच्छ भारत अभियान वाला जो एरिया 2016 था तब आया था दिस क्वेश्चन के. तो जो आपके स्कूल के कैबिनेट है उनका. देन द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, उनको मीटिंग में बुलाया है टू डिस्कस अबाउट सम इश्यू, तो मीटिंग्स आपके. देन आपका हो सकता है देर इज सम अपील, आपको कुछ बताया गया है, लाइक फॉर एग्जाम्पल स्कूल के टाइमिंग्स में चेंजिंग, आपके स्कूल के टाइमिंग्स में चेंज हुआ है, सम इंफॉर्मेशन, आपको किसी पर्टिकुलर इवेंट में अपील कर रहे हैं कि आप लोग डोनेट करो, टूर्स, ट्रैवल्स, यानी कि स्कूल के अंदर पिकनिक हो गया आपका, कैंप हो गया आपका वो. देन यू हैव वन मोर, दैट इज लॉस्ट एंड फाउंड. You might have done lost and found in your 11th standard also, but that you did under what you call as advertisement. लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है लॉस्ट एंड फाउंड हम करेंगे एज अ पार्ट ऑफ नोटिस. लाइक आपका बैग गुम गया, आपका वॉलेट गुम गया, आपका कुछ मतलब कि बुक्स गुम गए, और या आपको कुछ मिला, दैट. सो दीज आर द 5 kinds of notice which you can expect. मीन्स देयर माइट, और इनमें से 2 आपके पेपर में आएंगे. इट कैन बी एनी सेलिब्रेशन ऑफ एनी डे, एनीथिंग, या फिर कोई मीटिंग बुलाया है, विच इज वेरी कॉमन इन बोथ. यू कैन एक्सपेक्ट दिस मीटिंग और टूर्स एंड ट्रैवल्स. देन इंफॉर्मेशन एंड लॉस्ट एंड फाउंड, इन दोनों में चॉइस काफी आए.
So these are the kinds of notices we have in our class 12 syllabus. So now let us start with one question pertaining to the same so that you are clear with everything. This is one question. Your school is organizing a TED Talk and it is by renowned speaker Ankur Vakai. As Aisha and Ayush, head girl or head boy of KM Public School, you need to draft a notice informing the students and seeking their participation. ये आपका पूरा क्वेश्चन, यानी कि आपका इश्यूइंग अथॉरिटी केएम पब्लिक स्कूल, देन आपका टाइटल टेड टॉक, देन आपको इन्फॉर्म करना सभी बच्चों को, एंड देन इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग द टेड टॉक, कौन कर रहा है. नाउ वी हैव नॉट बीन गिवन द डिटेल्स कि कब होगा, कितने बजे होगा एंड कहाँ होगा. दैट इज इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स. जब यहाँ आपके लिखा हुआ है invent necessary details means all the details regarding that particular whatever the event is. Look at the question. The question has already been said that your school is organizing a TED Talk. Speaker Anku Vakai. You are the head boy or head girl school, KM Public School, and you need to inform and ask them to participate. So हमने लिखा KM Public School, then the word notice, then date. Our title is TED Talk. Then we are informing the student that the school is organizing भी हो सकता है, hosting भी हो सकता है. Then versatile, we have used it. आप famous भी लिख सकते. Public speaker Shri Anku Vakai will be the guest speaker. Date and day, venue, time. इसको आप एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हो, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बट अलग से लिखने से that looks better. And then what do you want the students? Do you want the students to participate, to assemble for any query? मतलब उसके बाद हमारा कॉमा आता है, कॉन्टैक्ट द अंडर साइंड होता है, अंडर साइन नहीं होता, साइंड जिसने नीचे साइन किया है, एंड देन द सिग्नेचर, नेम ऑफ द इश्यूअर,
and the designation. So this is the very first question. These are some of the kinds of notice, like we have done one regarding society information. Second is lost and found, and one more was regarding the school informing about a टेक टॉक. तो ये हमारे तीन अलग अलग हमने आज किए. We'll continue with one or two kinds more in our next class.